देखो Jigar, I know exactly why you clicked on this video. You've seen my content and maybe even my Instagram and you've probably thought कि how did this guy go from being a shy, fat and introverted lazy kid to being an entrepreneur, running communities, building businesses and living life on his own terms. And maybe a voice in your head is saying right now कि यार ये सब तो genetics है या फिर luck है या फिर he just had access to connections that I probably don't have. Let me kill those excuses for you right there because I was bullied in school, I couldn't even speak to girls, I was overweight for most of my teenage life and I had absolutely zero confidence. I didn't have the richest parents backing me, I didn't have a network and I didn't even know what entrepreneurship was until my early 20s. So if you're watching this thinking that you can't do it because of your circumstances, I promise you that by the end of this video you will understand exactly how an introverted, overweight and underconfident Pakistani kid reprogrammed his life completely. And more importantly, you will walk away with 5 realizations that you can directly apply to flip your own story. So stay with me till the end because my journey isn't just a story. It's a mirror that will show you exactly what's possible for you. अगर मैं time rewind करके वापस अपने O levels वाले version को देखूँ ना तो he was introverted, he was fat, he was lazy, but at least he was intelligent. I was always known as the kid जिसके exams में हमेशा अच्छे marks ही आते हैं. Whether it was CIEs, mocks या फिर midterms, I was always known as the kid जिसके हमेशा मार्क्स अच्छे आते हैं. लेकिन hiding behind that intelligence was someone who doubted in himself so much that he thought that he wasn't even deserving of success. उसकी आंखों के ऊपर एक ऐसी invisible पट्टी लगी हुई थी जो उसको somehow बस subconsciously convince कर चुकी थी कि he wasn't deserving of other people's time and success in life. मुझे अपने O levels वाले टाइम का याद है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लड़के मेरी क्लास के अंदर होते थे वो आपस में बहुत अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर लेते थे और एक दूसरे के साथ फायर प्लान्स पे भी जाते थे. बट आई ऑलवेज यूज्ड टू बी द किड जो क्लास में कोने में बैठा रहता था और चुप करके बैठा रहता था. एंड ही वाज ऑलवेज नोन एज द किड जो बस एग्जाम के टाइम पे अच्छे मार्क्स ले लेता है. आई वाज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग अप, शोइंग माई सेल्फ, आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई वाज सो डीपली इनसिक्योर कि मैं किसी के साथ भी बात नहीं करता था. एंड आई फेल इनटू द सेम ट्रैप व्हिच सो मेनी गाइज फॉल इनटू एंड व्हिच यू प्रोबेबली फॉलन इनटू एज वेल कि यू हैव जस्ट आइडेंटिफाइड योरसेल्फ एज समवन हु इज इंट्रोवर्टेड. एंड बिकॉज ये वाला लेबल तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा रिपीट हो चुका है तो दैट इज व्हाई इट हैज जस्ट बिकम योर आइडेंटिटी. नाउ नो वन एल्स हैज टू मेक द कॉन्शियस एफर्ट टू एक्चुअली sabotage your success because you just do it yourself by labeling yourself as someone who's not deserving of it. You have to understand one very important principle and that is that when a lie is told enough times, it eventually becomes the truth. If you keep repeating to yourself subconsciously that you are an introvert, so eventually you are going to start identifying as an introvert. I want to ask you a genuine question. अगर मैं तुम्हारे कान के अंदर एक earpod लगा देता या फिर एक headphone लगा देता और उसके अंदर consistently 24/7 एक ऑडियो चलाता रहता जिसके अंदर मैं तुम्हें दोबारा बोलता रहता कि you are an alcoholic, you are an alcoholic, you are an alcoholic. Eventually on a long enough time frame, if you keep hearing that in your head over and over again, so you will start chasing the people, circumstances and situations that will actually turn you into an alcoholic. इस चीज को truly understand करने के लिए you'll have to understand a concept which I've devised, which I like to call the flowchart of reality creation. इस flowchart के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो तुम्हारी thought stacks हैं. अगर तुम रोजमर्रा की बेसिस के ऊपर जो है वो 80 नेगेटिव थॉट्स और 10 पॉजिटिव थॉट्स फील करोगे तो देन यू आर गोइंग टू हैव अ नेट नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर लाइफ व्हिच इज प्रीटी ऑब्वियस, राइट? तो ये नेगेटिव थॉट स्टैक्स बेसिकली एक नेगेटिव वाइब्रेशन बनाएंगी और ये नेगेटिव वाइब्रेशन बेसिकली एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगी. एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली एन इंटरचेंजेबल टर्म फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और सेल्फ ट्रस्ट. एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू टर्न इनटू अ नेगेटिव इंट्यूशन एंड अ नेगेटिव इंट्यूशन is going to turn into negative mental nudges. Those negative mental nudges are going to prompt you to take the wrong kind of action to enter a wrong version of reality. So as an example, अगर एक ऐसा बंदा है जो consistently negative ही सोचता रहता है because of societal programming and familial programming, he's eventually going to have a negative vibration, he's going to have a negative frequency, he's going to have a negative intuition, and intuition is basically what you tell to yourself. Because of that negative intuition, you're going to get the wrong kinds of mental nudges, and because of having those wrong kinds of mental nudges, you're going to take the wrong kind of action and enter an undesired reality. This was exactly what was happening to me during my O levels, but I actually didn't have the frontal lobe awakening or the level of awareness to truly understand what was happening. मेरे अंदर consistently इतने ज़्यादा negative beliefs instill हुए थे जिसकी वजह से I was entering negative versions of reality, and that is the case for you most probably right now. Because मेरे साथ बचपन में इस तरह होता था कि हम लोग क्योंकि बचपन में दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते थे तो अगर मेरे से गलती से पानी गिर जाता था तो मेरे वाले साहब मेरी बेइज्जती करते
करते थे एंड उसकी वजह से बेसिकली एक पैटर्न मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इंस्टिल हो गया था, जिसकी वजह से ओ लेवल्स वाले टाइम के अंदर आई वाज वेरी स्केयर्ड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन बिकॉज आई वाज ऑलवेज प्री एम्प्टिंग फेलियर एंड आई वाज स्केयर्ड ऑफ फेलियर। क्योंकि बचपन में इस तरह होता था कि अगर कोई गलती कर देते थे तो उसकी वजह से बहुत रिपरकशंस फेस करने पड़ते थे और उसकी वजह से बच्चा बहुत इमोशनली इफेक्ट हो जाता है। तो दैट इज अ पैटर्न दैट एंड्स अप सेटिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो देन एज एन एडल्ट और एज एन एडोलेसेंट यू बेसिकली एक्सेप्टेड द सेम काइंड ऑफ बिहेवियर्स। क्योंकि ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड ईयर्स आई वाज पनिश्ड फॉर फेलिंग, तो इस वजह से ड्यूरिंग माई एडोलेसेंस ईयर्स एज वेल आई वाज स्केयर्ड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल एक्शन बिकॉज आई वाज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ फेलिंग। अब इसके अंदर मैं बिल्कुल भी इस चीज के ऊपर वाइन नहीं कर रहा या कंप्लेन नहीं कर रहा कि आई हैड द वर्स्ट चाइल्डहुड इन द वर्ल्ड, बिकॉज आई डिडंट। लेकिन विद इन अ वेकेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस आई एम एबल टू रेट्रोस्पेक्ट एंड ट्रूली अंडरस्टैंड वेयर दैट पैटर्न वाज एग्जैक्टली अराइजिंग फ्रॉम एंड दैट इज मोस्ट प्रोबेबली द केस फॉर यू राइट नाउ एज वेल। तुम अनकंफर्टेबल एक्शन अपने अडल्टहुड के अंदर भी आके 20-25 साल के होके 25-30 साल के होके फिर भी अवॉइड करते हो बिकॉज यू आर टू स्केयर्ड ऑफ फेलिंग एंड दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग टू मी। एंड इसके साथ साथ सुपर इम्पोज वो चीज़ होती रहती थी कि मैं कंसिस्टेंटली इस किस्म के मीम्स देखता था, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट देखता था जो दोबारा इस चीज़ को सुपर इम्पोज करते थे कि आई एम इंट्रोवर्टेड एंड ये फिर आइडेंटिटी मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सीमेंट की तरह पक्की होती जा रही थी। इसकी वजह से आई वॉज बुलिड इन स्कूल, आई कुडंट स्पीक टू गर्ल्स, आई कुडंट इवन मेक मेल फ्रेंड्स, आई कुडंट इवन आस्क क्वेश्चंस इन क्लास जब मेरे दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहे होते थे एंड इसकी वजह से आई यूज्ड टू बेसिकली सैबोटेज माय ओन सक्सेस। अब इसके साथ साथ बिकॉज आई बिलोंग्ड फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड मुझे याद है कि मैं जब स्कूल जाता होता था तो हमारी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द अपने क्लास वाले बच्चों को देखता था जो बेसिकली मुझे अभी तक याद है वो एक गाड़ी थी सिविक की ईगल आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो अबाउट दैट कार, लेकिन मुझे जो है वो बचपन से वो वाली गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती थी एंड मैं समझता था कि वो अमीरों की गाड़ी है। तो तब से जो है ना वो दैट मेंटल इमेज स्टिल स्टक इन माई माइंड कि मेरा लव फॉर मनी जो है ना या फिर मेकिंग मनी बेसिकली अराइज्ड फ्रॉम दैट विजन ऑफ अ ब्लू ईगल आई। क्योंकि सेल्फ वर्थ कम थी और सेल्फ कॉन्फिडेंस कम था और एक इनसिक्योर सा लड़का था, इस वजह से जब अपने इर्द गिर्द अपने क्लास में ऐसे लोगों को देखता था जो ज़्यादा अच्छी गाड़ियों के अंदर आए होते थे तो बिकॉज आई वॉज सो इनसिक्योर इन माई सेल्फ तो मटीरियलिस्टिक पोजेशंस जो है वो मुझे इस तरह फील कराती थी कि मे बी हैविंग these would somehow make me whole. That is exactly where my love for making money basically arised. तो फिर then during my A levels I started to actually contemplate on this and ask myself this question कि what is one career path जिसके थ्रू मैं पैसे कमा सकता हूँ। तब जो है वो इतना ज़्यादा modern wealth creation methods का इतना रुझान नहीं था तो I just asked myself कि कौन सा conventional career path है जिसके थ्रू पैसे कमा सकता हूँ और मेरे सामने 3-4 options रखी गई थी, या तो medicine या फिर engineering या फिर architecture या फिर business studies। and society ने जो है वो हमेशा ये इंप्रेशन बनाया हुआ था कि बिजनेस स्टडीज़ के अंदर तो हमेशा सबसे नालायक लोग जाते हैं, इंजीनियरिंग समहाउ बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है एंड डॉक्टरी जो है वो सबसे बेहतरीन फील्ड है। तो दैट इज़ वेयर आई मेड द एग्जीक्यूटिव एंड अमेजिंग डिसीजन ऑफ बेसिकली चूजिंग कि मैं ए लेवल्स के अंदर 4 सब्जेक्ट्स रख लेता हूँ क्योंकि मैं अभी भी अनश्योर था कि वेदर मेडिसिन इज ट्रूली द पाथ आई वांट टू गो डाउन। तो इस वजह से आई चूज बायो, chemistry, physics and maths in my A levels. This was honestly one of the most stupid decisions I've ever made in my life because any of you guys who've already been through A levels आप लोगों को सबको पता होगा कि 4 सब्जेक्ट्स A levels के अंदर चलाना is the most difficult thing in the world। तो खैर मैं इसी तरह अपने A levels के दौरान अपने 4 सब्जेक्ट्स जगल करता रहा and if I were to ask myself कि यार honestly अगर कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था मेरी लाइफ के अंदर तो I would honestly bring it down to 2 periods of my life जिसमें सेकंड पे जो है वो मेरा A levels का टाइम आ जाता है because during my A levels फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मेरे इर्द गिर्द जो है वो एक को एजुकेशन सिस्टम था जहाँ पे लड़के भी थे लड़कियाँ भी थी एंड एक इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एक्सपोजर विद इन्फिनिट काइंड्स ऑफ पीपल मुझे मिला एंड इसकी वजह से ऑनेस्टली मेरी ए लेवल्स के दौरान इनिशियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई थी। आई स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद गर्ल्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई गॉट लाइक इन्फिनिट अमाउंट्स ऑफ एक्सपोजर एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। लेकिन खैर ए लेवल्स के बाद जो है वो आई ग्रेजुएटेड विद 4 सब्जेक्ट्स बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स एंड ए लेवल्स के बाद आई स्टार्टेड माई क्वेस्ट ऑफ ट्राइंग टू एंटर मेडिकल स्कूल और इसकी वजह से आई स्टार्टेड माई MD CAT जर्नी। MD CAT के लिए बेसिकली मैंने 2 टेस्ट दिए थे और पहले टेस्ट के अंदर ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ था बिकॉज मैंने एक डेट पे जाके FMDC का टेस्ट दे दिया था और उसी डेट के ऊपर UHS का टेस्ट भी था। जिसको याद होगा 2019 का FMDC का टेस्ट आप सबको पता होगा कि भाई वो बहुत मुश्किल किस्म का टेस्ट था एंड मेरे इर्द गिर्द जितने भी लड़के थे लड़कियां थी जिन्होंने UHS का टेस्ट दिया था दे ऑनेस्टली एस्ड दैट एग्जाम। तो पहले वो टेस्ट देने की वजह से बेसिकली आई फ्लंक्ड दैट टेस्ट एंड उसके बाद फिर नम्स का टेस्ट हुआ। नम्स का टेस्ट जो है वो पहली दफ़ा हुआ बट देन उसके बाद जो है वो नम्स के टेस्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई एंड उसके बाद देयर वाज अ रीटेक। जो मैंने नम्स का जब रीटेक
दिया, उसके बाद आई बेसिकली सिक्योर्ड द मार्क्स इन ऑर्डर टू एंटर मेडिकल स्कूल। एंड जब मैंने मेडिकल स्कूल एंटर किया तो आई एंटर्ड द पॉइंट इन माई लाइफ विच वॉज ऑनेस्टली द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी। मैंने इस टाइम के अंदर इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस किए हैं, इतने ट्रिवियल टाइम्स फेस किए हैं, इतने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगों के साथ इंटरैक्ट किए और इतने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस चेस किए हैं कि दिस टाइम दीज 5 years वर ऑनेस्टली द मोस्ट लाइफ चेंजिंग फॉर मी। जब मैंने अपना MBBS स्टार्ट किया तो आई थिंक अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू बी एबल टू रिलेट टू दिस विद मी। मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत से लोग, बल्कि 90% लोग बेसिकली FSC के थे और मैं OA लेवल्स का बर्गर बच्चा था, तो मैं जो है वो उन लोगों के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर पाया। एंड उस टाइम पे जो है वो मेरी ना सोशल स्किल्स थी, ना कम्युनिकेशन स्किल्स थी, ना मैं किसी के साथ कोई बॉन्ड्स बिल्ड कर सकता था, और इसकी वजह से आई रियली स्ट्रगल्ड फॉर माई फर्स्ट 2 years ऑफ मेडिसिन एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो सॉलिड फ्रेंड ग्रुप। इन 2 साल के दौरान मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ने इस चीज़ की रियलाइजेशन करवाई थी कि एग्जैक्टली ह्यूमन कनेक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एस ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स एंड वी फील हैप्पीएस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर गुड ह्यूमंस। एंड वो 2 साल जितने मैंने मुश्किल गुजारे, ऑनेस्टली आई कांट पुट देम इनटू वर्ड्स, लेकिन 3rd year के अंदर जो है वो फिर फाइनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दोज अनकंफर्टेबल सिचुएशंस, मैंने बेसिकली अपने आप को बताना शुरू किया कि यार आई नीड टू बेसिकली चेंज समथिंग इन माई लाइफ। आई नीड टू बिकम मोर ऑफ एन आउटगोइंग पर्सन। आई नीड टू पुश माई सेल्फ आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। आई नीड टू स्टार्ट मीटिंग न्यू people. I need to start putting myself in situations which the older version of me wouldn't have put himself into. And then वहाँ पे जो है वो एक transformative चीज़ हुई जहाँ in my 3rd year of medicine I started my first online business. इस ऑनलाइन बिजनेस में बेसिकली मैंने कॉपी राइटिंग स्टार्ट की, जिस तरह बहुत से लड़के और बहुत सी लड़कियां स्टार्ट करती हैं जब वो शुरू में अपनी ऑनलाइन बिजनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं। एंड वहाँ पे मैंने जाके एग्जैक्टली वो सारे फेलियर्स फेस किए जो आप लोग सब फेस करते हो जब आप शुरू में कॉपी राइटिंग स्टार्ट करते हो। आई यूज्ड टू सेंड कस्टमाइज्ड वीडियो पिचेस टू एब्सोल्युटली एवरी कॉस्मेटिक क्लिनिक आई कुड सेट माई आई ऑन। आई वुड सेंड DM टेम्पलेट्स, आई वुड सेंड पिच डेक्स, एंड ऑन रिपीट मेरी बस कोशिश थी। वो जो एक बचपन में मेरा एक लव ऑफ मनी बन गया था ना, जो मैंने वीडियो में पीछे बताया जहाँ पे मैंने ब्लू ईगल आई देखी थी, वो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्योंकि बैठा हुआ था, तो इस वजह से आई वाज ट्राइंग टू बेसिकली मेक इट इन द रियल वर्ल्ड एंड स्टार्ट अर्निंग यूजिंग सम काइंड ऑफ मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन मेथड। एंड उस टाइम पे इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रा बढ़नी शुरू हुई थी, स्पेशली हमारी कंट्री के अंदर, तो इस वजह से आई स्टार्टेड टू लर्न कॉपी राइटिंग, स्टार्टिंग पिचिंग पीपल, बट टू एब्सोल्युटली नो अवे। इवेंचुअली freelancing.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स लैंड कर लेता था। फिर मैंने कुछ पाकिस्तान के अंदर भी कॉपी राइटिंग का काम किया, एंड उसके बाद आई बेसिकली डिसाइडेड कि मैं फेसबुक एड्स लर्न करना शुरू करता हूँ एंड वो सर्विसेज सेल करना शुरू करता हूँ साइड माई कॉपी राइटिंग। इसके ऊपर पे मैंने वर्किंग शुरू की, इस पर बहुत से प्रपोजल्स रिजेक्ट हुए, बहुत सी वेस्टेड एनर्जी हुई, बट उसके बाद इवेंचुअली आई लैंडेड माई फर्स्ट क्लाइंट विद माई फ्रेंड, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने इस वक्त आ रही होगी। आई हैव टोल्ड द स्टोरी मल्टीपल टाइम्स इन माई प्रीवियस वीडियोज के, जहाँ पे आई बेसिकली went with this friend of mine जो बेसिकली मेरे साथ ये काम कर रहा था, एंड वी क्लोज दिस फर्स्ट डील ऑफ आवर्स। ऑनेस्टली हम लोग इतना ज़्यादा तैयार होके गए हुए थे, एंड शुक्र है कि हम लोगों ने ये तस्वीर ली थी, बिकॉज व्हेन आई लुक बैक एट इट, मैं सोचता हूँ कि यार इट हैज़ बीन एन एब्सोल्युटली अमेजिंग जर्नी, एंड यू नो आई एम थैंकफुल फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव बीन थ्रू। ये जो पहले पैसे मैंने कमाए थे ना, ये सिर्फ एक ब्रेक थ्रू नहीं थे, बल्कि एक रियलाइजेशन भी थे कि एग्जैक्टली कितना ज़्यादा पावर ऑफ लिबरेशन होती है पैसे के अंदर, और स्पेशली एट अ यंग एज। इवन दो ये बाय एनी मीन्स कोई ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बिकॉज ये हमारी जेब के अंदर पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर आए थे, एंड वी वर जस्ट यंग गाइज हु हैड सम मनी ऑन आवर हैंड्स, इट मेंट ऑनेस्टली सो मच टू अस। एंड आफ्टर मेकिंग दिस फर्स्ट अमाउंट ऑफ मनी, इन दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि एंटरप्रेन्योरशिप वाज समथिंग आई वांटेड टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज दिस वाज सो फन, द थ्रिल वाज अमेजिंग, द एड्रेनलिन रश वाज समथिंग एल्स, एंड आई रियलाइज कि भाई यही चीज़ है, और मैंने मेडिसिन कोई नहीं करनी, वो मैंने उसी मोमेंट में डिसाइड कर लिया था। लेकिन उस डिसीजन को फाइनलाइज करने के लिए जो है वो आई हैड टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिर्फ इस तरह के ट्रांजिएंट फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोजेक्ट से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप अपना करियर पाथ कंप्लीटली क्विट कर दोगे। एंड दैट इज समथिंग आई प्रीच टू ऑल ऑफ यू गाइज, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग अ जॉब और इफ यू आर इन यूनिवर्सिटी, आई वुड नेवर रिकमेंड टू यू कि आप जो है वो अपनी जॉब या फिर अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीटली क्विट कर दो और फिर मॉडर्न वेल्थ क्रिएशन मेथड्स पे काम करना शुरू कर दो। बिल्ड योर बिजनेस अलॉन्ग साइड योर जॉब, एंड व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग इनफ proof of concept, then you can consider quitting your job like I personally did. तो by the time मैं अपने final year की end पे पहुंचा, at that point alhamdulillah I was making enough money which was honestly more than my principal made at that time. तो उस moment में I basically decided कि I wanted to go all in on entrepreneurship, and that was honestly the best decision that I've ever made. जब मैंने शुरू में पैसे कमाना शुरू किए थे ना, तो एक और realization जो मुझे hit हुई थी वो ये थी कि पैसे कमाने से भी ज़्यादा जो है वो पैसे को intelligently manage करना है। क्योंकि जब छोटे छोटे projects मैंने land करना शुरू किए तो मैंने एक pattern अपने ऊपर notice
किया कि मेरे पास जितने आते थे वो मैं सारे के सारे उड़ा देता था। मेरे अंदर कोई फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं था। एंड अगर तुम्हें ऑनेस्टली लगता है ना कि अगर तुमने जिंदगी में कभी ऑनलाइन पैसे नहीं कमाए हुए एंड तुम्हें पैसों की तलब होती है, जब तुम एक दफा कमा लोगे एंड उसके बाद व्हेन यू लूज इट ऑल, उसके बाद एक अलग लेवल ऑफ तलब होती है। उसके बाद बंदे को ट्रूली एक रियलाइजेशन हिट करती है कि एक कंसिस्टेंट और अच्छी सोर्स ऑफ रेवेन्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन एज अ स्टूडेंट और इवन एज अ जॉब वर्किंग पर्सन। इसके बाद मैंने अपना पर्सनल ब्रांड स्टार्ट किया, वेयर आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोस इन माय ओन रूम, आई स्टार्टेड पोस्टिंग देम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई वाज एबल टू सरमास एन ऑडियंस ऑफ 300,000 प्लस फॉलोअर्स इन अ मैटर ऑफ 8 मंथ्स। मैंने ये यूट्यूब वाली ऑडियंस स्क्रैच से ग्रो की है फ्रॉम 0 सब्सक्राइबर्स ऑल द वे अप टू 60,000 plus subscribers in just a matter of 4-5 months. And अब alhamdulillah I own multiple businesses. I have this office of my own. I own multiple communities and alhamdulillah I can honestly say कि I now live life on my own terms. And ये story सारी exactly बताने का मकसद क्या था? ये story बताने का मकसद ये था कि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि अगर तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो कि you can't do it because of X, Y and Z circumstances, तो मैं तुम्हें exactly दिखाऊं कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मैं झोंपड़ियों से उठ के आया हूँ या फिर मैं पुल के नीचे जो है वो एक नशाई होता था और अब मैं कोई बहुत कोई सक्सेसफुल तोप किस्म की चीज़ बन गया हूँ, बिल्कुल भी इस तरह नहीं कह रहा। लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ विजुअली प्रूफ के साथ दिखाना चाह रहा हूँ कि आई वॉज इन द एग्जैक्ट सिचुएशन दैट यू आर स्टक इन राइट नाउ। एंड मुझे भी सेल्फ बिलीफ के प्रॉब्लम्स थे, सेल्फ वर्थ के प्रॉब्लम्स थे, डिसिप्लिन के प्रॉब्लम्स थे, लेजी था मैं, अनमोटिवेटेड था। एंड अगर तुम मेरी अभी वाली वर्जन को देख के कह रहे हो ना कि यार मैं उज़ैर से इंस्पायर्ड हूँ एंड आई वांट टू अचीव सिमिलर रिजल्ट्स एज हिम, ऑनेस्टली डोंट आइडलाइज मी और एनीवन एल्स फॉर दैट मैटर। बिकॉज अगर तुम इस तरह के किसी भी बंदे को आइडलाइज करोगे ना तो तुम सोचने लग जाओगे कि यार ये जहाँ तक पहुंच गया मैं इधर तक कैसे पहुंचूंगा। तुम पहाड़ की बेस पे खड़े हो गए एंड यूल बी स्ट्रेसिंग आउट अबाउट हाउ यूल गेट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन व्हेन द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। बात असल में ये आ जाती है कि तुम्हारे सामने जितने भी लोग हैं जिन्हें तुम सक्सेसफुल डीम करते हो, इन्हें भी फीलिंग्स ऑफ सेल्फ डाउट होती थी, ये भी डिसिप्लिन लैक करते थे, ये भी अनमोटिवेटेड थे, ये भी अनहेल्दी थे, लेकिन ये अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल इस वजह से हुए हैं बिकॉज ऑन अ डेली इन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन किया है। ऑन अ डेली दे शोड अप एंड डन अनकंफर्टेबल थिंग्स डिस्पाइट नॉट फीलिंग लाइक इट। तो मैं तुम्हें ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज यू फील लाइक नॉट वर्किंग टुडे दैट डजंट जस्टिफाई नॉट वर्किंग टुडे। बिकॉज तुम्हें अपने सामने जो सक्सेसफुल लोग नजर आ रहे हैं वो तुम्हारे से ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा स्किल्ड नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा लकी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ डर महसूस करने के बावजूद एक्शन ले लेते हैं और तुम डर के पीछे चुप करके छुप जाते हो। तो जिगर दैट्स हाउ आई वेंट फ्रॉम बीइंग अ फैट, इनसिक्योर एंड लेजी किड who couldn't even look people in the eye to the man you see today who runs multiple businesses, multiple communities and empowers other men to do the same. I didn't share this story to flex because honestly there's still so much I need to achieve. I shared it because I want you to see that no matter where you start in life, it is possible to flip the script. If there's one thing you should take away from this video, it's this: no one is coming to save you. The day that you accept that truth and take full responsibility for your life, that is where your journey begins. If you found this video to be relatable and you found it valuable, I want you to comment down under the comments telling us about your personal journey. And if you're ready to stop consuming and start executing, you'll find the link to my private community Kafla down in the description, where we help you to do the same things which I've personally done in my life. उस community के अंदर we basically help you make your first $1,000 in 30 to 60 days using modern wealth creation methods. At the end, remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.